Namaskar. Students, today we shall learn trigonometric functions of compound angles. The moment word trigonometry comes, you understand the relation between angles and sides of triangle. But trigonometric functions of compound angles, you know angles, you know trigonometry, लेकिन ये compound क्या है? So simple thing is, I'll explain. You see, if I consider A as one angle and B as another angle, then A plus B नहीं तो A minus B का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन ऑफ A plus B वगैरह वगैरह जब हम निकालते हैं, that is called trigonometric function of compound angle. So A plus B, A minus B का साइन, कॉस, टैन, cot, sec, cosec आप जब निकालेंगे, that is called trigonometric function of compound angle. Now, see, as per your previous knowledge, that is up to 10th standard, you have done algebra. That is x into y plus z is definitely xy plus xz. There is no doubt at all. लेकिन trigonometry में ऐसा चलता नहीं है. Why? Because trigonometric functions are functions. It's not algebra going on. Function. ये फंक्शन क्या होता है? ये एक ऑपरेटर होता है, जैसे मशीन होता है जिसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है. तो वैसे if I say and ask you what is sin 30, you say half. Correct? तो इसमें क्या हो गया? ये साइन, ये मशीन है, क्योंकि इस साइन के जगह अगर मैं cos लिख देता तो cos 30 हाफ तो है नहीं, वो है √3/2. So it simply means you have some letters which are called function, which when operated on some number gives you the other answer. तो ये input हो गया, ये output हो गया. These are independent variable, these are dependent variable. और जिस कारण होता है उसे function बोला जाता है. अभी देखना, अगर मैंने पूछा sin 60 कितना होता है, तो आप मुझे बोलोगे कि sin 60 √3/2 होता है. तो अभी देखना, 60 can be written as 30 plus 30. Am I right? अभी दोनों बाजू साइन रेशो ले लेना, तो sin 60 is sin of 30 plus 30. और बाय चांस अगर आपने इसको एक्सपांड कर दिया, दैट इज sin 30 plus sin 30, तो आप देखना sin 30 हाफ प्लस sin 30 हाफ, आपका RHS तो आ गया 1, लेकिन आपका LHS क्या है? √3/2, because it is sin 60. It simply means you cannot expand this way, and therefore there comes a way to learn what is called trigonometric function of compound angle. इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले है जो मैं अभी आपके लिए बोर्ड के ऊपर लिखने जा रहा हूं. आप पूरी तरह से ध्यान देना, और आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स उस फॉर्मूले के हिसाब से मिलने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप फर्स्ट फॉर्मूला साइन ऑफ A प्लस B देखिए. व्हाट इज इट? इट इज साइन A cos B प्लस cos A sin B. देखो, sin A cos B प्लस cos A sin B. नंबर 2, साइन ऑफ A माइनस B which is sin A cos B माइनस cos A sin B. आप पढ़ते पढ़ते देखते देखते खुद भी लिखना, बायहार्ट कर लेना. फिर cos of A plus B, it is cos A cos B minus sin A sin B. So please take care, in cos whenever there is a plus sign, outside it is minus sign. The fourth one, which is cos of A minus B, which is cos A cos B plus sin A sin B. देखो, चार फॉर्मूले हो गए बोलते बोलते. नाउ व्हेन यू हैव tan of A plus B, तो आपको tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B. और एक आखिरी फॉर्मूला tan of A minus B equals to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. So you please look at these two formulae.
ए प्लस बी है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहां जब माइनस होता है यहां माइनस यहां प्लस, एक फॉर्मेट तो वही है। Understood? So these six formulae are of utmost importance to get trigonometric ratios which are not multiple of 30, 45, 90, usually what you know. Understand? Okay. Now what you do is this, these are not only formulae in this chapter. उसके अलावा भी काफी फॉर्मूले हैं, लेकिन पहले इतने आप याद करो। Students, now we will see trigonometric functions of multiple angles. मल्टीपल का मतलब 2 theta, 3 theta and so on. Because we are now studying in 11th and 12th standard, we will confine ourselves to only 2 theta as well as 3 theta. कभी कभार प्रॉब्लम में आ जाता है 5 theta, 6 theta, but you don't have to learn that formula. वो आगे चल के इंजीनियरिंग में जाओगे, नहीं तो स्पेशल मैथमेटिक्स सीखोगे तब आ जाएगा। अभी मल्टीपल एंगल मतलब 2 theta नहीं तो 3 theta। फर्स्ट वन sin of 2 theta which is 2 sin theta cos theta। इसमें क्या एक फॉर्मूला है 2 theta, मतलब ये थीटा का डबल है तो यहाँ थीटा थीटा आता है। इसका मतलब अगर यहाँ 100 थीटा होता 100 थीटा, सो दिस विल बी 50 थीटा 50 थीटा। समझ में बात? ओके, दिस इज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। देयर इज अनदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, यस। नंबर 2 cos ऑफ 2 थीटा, इसके 4 फॉर्मूले हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक आखिरी है जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात तो वही है जिसमें थीटा का मल्टीपल 2 है तो यहाँ थीटा थीटा आता है। ओके, वी मूव नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज tan of 2 theta. What is it? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. ये कैसे आ गया? देखो, sin डिवाइड बाय cos is tan, तो ये फॉर्मूला डिवाइड बाय ये फॉर्मूला करेंगे तो आपको वही मिलने वाला है। सो ये हो गए 2 थीटा के। अगर आपको अगले चाहिए तो देखना, वी हैव फॉर्मूले फॉर 3 थीटा। हैव अ लुक, फॉर्मूले फॉर 3 थीटा, 3 फॉर्मूले है। नंबर 1 साइन ऑफ 3 थीटा क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर है cos 3 थीटा विच इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थोड़ा सा उल्टा हो गया साइन से। और एक आखिरी है tan ऑफ 3 थीटा विच इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, नाउ विल गो फॉर फॉर्मूले फॉर सब मल्टीपल एंगल। सब मतलब छोटा, तो थीटा है उसके डिवाइड बाय 2 मतलब छोटा हो गया, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखिए, साइन ऑफ थीटा कैन बी 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो पहले भी ऐसे लिख चुके थे, sin 2 थीटा था 2 sin थीटा cos थीटा। नाउ दिस हैज बिकम sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स cos थीटा। वी हैव cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ऑलराइट, देन इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 which is also 1 minus 2 sin square theta by 2, and ultimately you see यहाँ एक रह गया, that is 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2। वैसे ही इधर आ जाता है cos थीटा के लिए 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए, समझ में? ओके, सो वी हैव फॉर्मूला फॉर tan थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2 एज tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इन फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे,
लेकिन बच्चों आपको इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम गोइंग टू टीच यू, जस्ट लिसन, दैट्स कॉल्ड अलाइड एंगल्स। अभी अलाइड एंगल क्या है तो देखिए, इन योर 10th स्टैंडर्ड आपको ये फॉर्मूला मालूम था, व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज ऑफ कोर्स cos थीटा, करेक्ट। आपको मालूम है cos of 90 minus theta is also sin theta and so on. Now you are learning something advanced and therefore अभी आप नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसका नाम है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स जिसमें आपको मालूम है आप रेडियन, यू नो 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन, सो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, नहीं तो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, एक्सेट्रा। So it could be any multiple of pi plus minus theta or odd multiple of pi by 2 plus minus theta. अगर ऐसा है, काफी बुक्स में बहुत ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते फॉर्मूले की, but that is never the way you learn. I'm going to show you a simple technique by which the moment you see the problem you at once solve it. कैसे? तो उसके पहले mind this x axis and y axis. You must know that x is cos theta and y is sin theta. इतना आप याद रखना, x is cos theta and y is sin theta. हाँ, इतना याद रखना। अभी आपको पता है कि you have plus plus, minus plus, minus minus and plus minus. So all the trigonometric ratios positive, sin is positive, tan is positive and cos is positive. इतना याद रखना। अभी आपको पता है कि 90 प्लस माइनस करेंगे, नहीं तो 180 प्लस माइनस करेंगे, सो यू शुड माइंड दैट देयर आर टू केसेस। केस 1 दैट इज थीटा इज 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, एक्सेट्रा। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन इन डिग्री, लेकिन वो रेडियन में चाहिए तो पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ओके, दिस इज रेडियन। ऐसे समय क्या करेंगे याद रखना, रेशियो चेंजेस, मतलब साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, tan changes to cot and cot changes to tan, sec changes to cosec and cosec changes to sec। इतना याद है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी साइन, S-I-N, साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट, साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने बताया ये क्या है, तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, तो ऐसे समय आप क्या करेंगे, 90 ऑपरेशन है, मतलब रेशियो चेंज करना है, तो साइन का आप पहले ही लिख दो cos ऑफ थीटा। फिर सोचना which is the angle 90 plus theta, 90 plus theta is in second quadrant, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इधर प्लस लिखो, यू हैव फिनिश्ड आंसर। नाउ सेकेंड इज cos ऑफ, फॉर एग्जांपल 270 माइनस थीटा किसी ने पूछ लिया, तो क्या होगा 270 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, आपको पता है cos का होने वाला है sin थीटा। 270 माइनस मतलब आप पीछे आ जाओ, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन लिख लो, समझ में आया। अभी और एक बताता हूँ, tan ऑफ से 270 प्लस थीटा, देखो 270 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, आप इधर cot लिखो, 270 प्लस थीटा, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, एंड दैट इज योर केस 1। देयर इज सेकंड केस, you have case 2 where angles are 180 degree plus minus theta, 360 plus minus theta, or it is in radian, that is pi plus minus theta, 2 pi plus minus theta and so on। तो ऐसे समय क्या करते हैं, वही रेशियो रिमेन्स सेम, इतना याद रखना, रेशियो रिमेन्स सेम, मतलब अगर साइन रेशियो है
तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, समझ में, एक्सेट्रा, मतलब रेशियो रिमेन सेम, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज साइन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। आपको पता है आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, उसके सबसे साइन। तो कैसे, देखो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू tan ऑफ 180 माइनस थीटा एट वंस, देखो 180 का ऑपरेशन है तो tan का tan ही रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी tan। नाउ 180 माइनस, you have come backward, it is a second quadrant, second में tan कैसा है, negative, so it is minus tan theta। Next example, if it is sin of 180 plus theta, 180 operation, sin remains sin, you see, तो लिख लो sin theta। पहले वाले में क्या बताया था, पाई बाय 2 है, 90 डिग्री है, रेशियो चेंजेस, अभी क्या बताया 180, तो sin remains sin, लेकिन 180 plus theta is in which quadrant? It is in third quadrant. Third में sin कैसा है, negative. So what's the answer? Minus sin. So one more example to illustrate. Let us say sec of 360 minus theta. देखो 360 is multiple of 180. So sec का sec ही रहेगा. Very good. 360 minus theta. You have come a backward side. Minus मतलब पीछे आ जाओ. फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और इसलिए sec भी पॉजिटिव है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज allied angles। 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सीइंग बेसिक्स, अल्ट्रा बेसिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर कंपाउंड एंगल्स a प्लस b, a माइनस b। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, एंड यू प्लीज राइट दोस फॉर्मूले ऑन योर नोटबुक अगेन एंड अगेन, बाय हार्ट इट इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर एवर। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नेक्स्ट वीडियो विच विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले। थैंक यू।